فراڈ سمجھتے ہیں. پہلے دوست سے اس طرف کیا ہے تمام سیاسی پارٹیوں اور اس حوالے سے یہ موقف آج ایک قومی موقف کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. آج گلی کوچے میں بچے کی زبان پر یہ ہے کہ یہ الیکشن فراڈ ہے اور یہ لوگ ہیں جعلی قسم کے لوگ بناتے ہیں. مولانا صاحب دیکھیں پورا پاکستان پریشان ہے، شاید ہی کوئی خوش ہو موجودہ حکومت سے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ اپوزیشن بھی کہیں متحد نہیں ہو رہی، کسی ایک بات پہ متفق نہیں ہو رہی. آپ نے دھرنا دیا، جس طرح پیپلز پارٹی یا نون لیگ نے یا دیگر جماعتوں نے ساتھ دیا وہ سب کے سامنے ہے. اس وقت بھی صورتحال یہ جب کوئی بڑا ایونٹ آتا ہے تو میاں شہباز شریف صاحب یا تو بیمار ہو جاتے ہیں یا ان کے کوئی تو راستے میں رہ جاتے ہیں تو ایونٹ پورا نہیں ہوتا. تو کیا آپ لوگ متفق ہوں گے تاکہ کوئی ملک میں کوئی عوام کو کوئی متفقہ کوئی پالیسی دی جا سکے؟ بالکل اس حوالے سے شکوے شکایات موجود ہیں اور اس طرح آپ نے کہا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں باہمی طور پر گفتگو سے ہی حل ہوتی ہیں. اور جس طرح ہم نے آل پارٹیز صوبوں کے لیول پر کی ہے، جیسے صوبوں کے لیول پر ہم نے کی ہے اور اس سے ایک یکجہتی کی فضا پیدا کی ہے. انشاءاللہ مرکز کی سطح پر بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد کی طرف ہم جا رہے ہیں، کیونکہ جب تک ہم صرف ایک موقف پہ متفق ہونا کافی نہیں ہے، جب تک کہ ہم اس کے بعد اقدامات پر یکجہتی کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کا مکمل طور پر شانہ بشانہ ساتھ نہیں دیں گے. یہاں پر آ کر کچھ شکایتیں پیدا ہوئی ہیں اور اس کا ازالہ جو ہے ہم اس وقت ضروری سمجھتے ہیں. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ حل عوام کو نجات کیسے دلائیں گے؟ آپ کے پاس کیا پروگرام ہے؟ لوگ آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، پارلیمنٹ ایریا سے مایوس ہیں اور موجودہ حکومت اور جو ان کے سرپرست ادارے ہیں ان سے بھی لوگوں کو اچھی امید اور توقعات نہیں ہے. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ جو عوامی مسائل ہوتے ہیں وہ تو ان کا ایک اولین جو ضرورت ہے وہ معاشی مسئلہ ہوتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ کا بجٹ جو ہے زیرو سے نیچے چلا گیا. ہمیشہ کے لیے اگلے سال کے بجٹ کا حجم پچھلے سال کے حجم سے زیادہ ہوتا ہے. پہلی مرتبہ آپ کے ملک کا اگلے سال کے بجٹ کا حجم پچھلے سال سے کم ہے. ہمیشہ کے لیے اگلے سال کے محصولات کا حجم پچھلے سال کے محصولات کے ہدف سے زیادہ ہوا کرتا ہے. اس دفعہ آپ نے وہ ہدف بھی اگلے سال کا پچھلے سال کے مطلب کم کر دیا ہے. ایسی صورتحال جبکہ نہ باہر دنیا سے ہمیں کوئی مدد دینے کو تیار ہے، نہ پاکستانی وہاں پاکستان پیسہ بھیجنے کے لیے تیار ہے، آپ کی برآمدات ختم ہو چکی ہیں، پیسہ نہیں رہا ہے، تو مزید کتنا اس ملک کو تباہ کرنا ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج کی اس متمدن دنیا میں اگر ریاستوں کی بقا کا مدار کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ معاشی خوشحالی ہو سکتی ہے. جاپان کی فوج نہیں لیکن معیشت مستحکم ہے اور جو بڑی طاقتوں کے ساتھ بات کرتا ہے. سوویت یونین فوجی لحاظ سے طاقتور ملک لیکن معاشی لحاظ سے گر گیا، اپنا وجود ختم کر گیا. آج جو ہم بیٹھے ہیں جس کے لیے ہم فکر مند ہیں، اس کو اس حوالے سے سنجیدہ لینا چاہیے کہ یہ سب لوگ اس وقت ریاست کی بقا کی جگہ ہیں. یہ بتائیے اس وقت حکومتی جو پالیسیاں ہیں آپ اس سے کس طرح کے ساتھ تک متفق ہیں؟ اس میں یہ لے لیں کہ اسلام آباد میں جو مندر بن رہا ہے اس کے بارے میں بتائیے. اسلام آباد میں مندر بننے جا رہا ہے اس کے بارے میں بتائیے گا، یہ پالیسی کیا کہیں گے؟ دیکھیے وہ مسئلہ اگر ہے بھی، پاکستان چونکہ ایسا نہیں ہے کہ کسی جنگ کی بنیاد پر فتح کیا گیا، یہ برصغیر کے لوگوں کے باہر صلح کی بنیاد پر ایسی ہوئی تھی. اور اس اعتبار سے یہاں پر جو اقلیتوں کی حیثیت ہے وہ نہیں ہے جو مفتوحہ علاقے کی ہوا کرتی ہے، برابر خیری کی حیثیت. تاہم عضوِ شریعہ کسی اسلامی مملکت میں یا اسلامی شہر میں غیر مسلموں کے عبادت خانے بنانا، ہم نے اس پر کہا ہے بجائے اس کے کہ ہر شخص اپنی اپنی رائے دیتا رہے، اس کو اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیج دیا جائے
या वफाकी शरीयत इसको सुने, ताकि अजूरी शरीयत सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाए और उसके मुताबिक फिर अमल किया जाए। अच्छा मौलाना साहब, हमने तो देखा कि कोरोना जैसे अहम मसले पे वफाकी हुकूमत जो है वो चारों सूबों को और वोट नहीं दे सकी, जहाँ पे लोगों की, आवाम की, लाखों की जिंदगी मौत का मसला था। तो आप उस पर कजा ये समझते कि NFC अवार्ड जो दीगर बड़े बड़े मसाइल हैं, जहाँ जिंदगी मौत का मसला था, एक आम आदमी एक पेज पर नहीं आ सके? भाई आप तो मेरे ख्याल में कोविड-19 की बात कर रहे हैं, तो हम तो अभी तक कोविड-18 के साथ गुरदार एक कोविड तो नहीं है। मौलाना साहब, आप समझते हैं कि ये हुकूमत जो है वो 5 साल पूरा कर लेंगे? एक पेट्रोल का बुरान, फिर चीनी का बुरान, फिर आटे का बुरान, उस पर GIT खोल लेते, अपनी मवेशी के पीछे ले जाते। ये 5 साल पूरे कर लेंगे आप? 5 साल पूरे करने का माना यह है कि आप पूरी कौम को बददुआ करें। इसको मैं पूरी कौम के लिए बददुआ से ताबीर करता हूँ। कोई तब्दीली की बात नहीं है, तबाही की बात है। अच्छा हजरत, चले कौम को बददुआ न दें, ये बताइएगा कि नए इलेक्शन मौजूदा सूरत हाल का हल है या पार्लियामेंट में तब्दीली? दूसरा सवाल ये है कि आपके साथ मार्च और अप्रैल के वादे सुने जाएंगे। देखिए, आईन पाकिस्तान ये हमारे दरमियान एक मिसाक मिलती, यही एक इमरानी मुआहिदा है तमाम सूबों के और सूबों के अंदर रहने वाले कौमियतों। आज भी हम यही मुतालबा करेंगे कि दोबारा ये वोट कौम की अमानत से वापस इलेक्शन शफाफ किए जाए। ये दौर अब खत्म हो जाना चाहिए कि इलेक्शन होते हैं और उस पर जो है एतराज़ात शुरू हो जाते हैं। एक दफ़ा शफाफ कौम को दिया जाए, इदारे मुदाखलत न करें, वक्त से तब्दील न करें, वक्त से न चुराएं, आवाम के वोट को सही मानों में गिना जाए, जो फैसला कौम करेगी। अच्छा मौलाना साहब, -1 की बातें की जा रही है, -1 की जो है वो बातें सुनाई दी जा रही है, आपके इल्म में भी होगा कि आपको लगता है कि -1 होने जा रहा है? हजरत, एक अंडे को निकालने से कुछ नहीं होगा, पूरा टोकरा जो है वो खराब होगा। -1 की बात करें। हजरत, गुज़िश्ता हुकूमत पर ये एतराज़ था कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में कलभूषण का नाम नहीं लिया, लेकिन एक तो अभी अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को वॉकआउट दिया गया, दूसरा कलभूषण को अपील की भी पेशकश की गई है। तो ये पॉलिसी क्या बन गई गवर्नमेंट की? कुछ थोड़ा सा हम तो वाकई नहीं समझ रहे इस बात को। जिस तरह फाटा का इंतजाम किया गया, बिल्कुल उसी तरीके से कश्मीर का इंतजाम कर लिया गया। अब हमारी पॉलिसी अजीब है कि कश्मीर के महाज पर टेंशन है और करतारपुर के महाज पर दोस्ती और मोहब्बत है। ये दो महाजों पर एक ही यूनियन के साथ अपनी पॉलिसी खुद समझनी है, तो आप क्या बता रहे हैं? खुद बता रहे हैं। कलभूषण के हवाले से कलभूषण के हवाले से मसला अदालत में है, उसको अदालत में होना चाहिए। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हमें अपने दुश्मन के साथ, चाहे वो हमारा दुश्मन भी है, लेकिन अदल इंसाफ को आप लॉकडाउन से मुत्तफिक थे या स्मार्ट लॉकडाउन से मुत्तफिक थे? आप लॉकडाउन से मुत्तफिक थे या स्मार्ट मेरे लॉकडाउन? मुदारसों ने कोई एक पॉलिसी नहीं, पूरा कौम परेशान है। वज़ीर आज़म है या वज़ीर आज़म है? वज़ीर आज़म कहते हैं कि जो कौम का बोझ उठाए, वज़ीर आज़म उसको कहते हैं जो कौम का बोझ उठाए। तो वो कुछ कहता है, फौज की तरफ से बयान आता है, वो फिर कुछ कहते हैं। वो खुद आपस में एक पेज पे नहीं है, यानी रियासत और रियासती इदारे एक पेज पे नहीं है। फिर विफाक कुछ कहता है, सूबा सीनियर को कुछ कहते हैं, एक सूबा कुछ कहता है, 3 सूबे कुछ कहते हैं। पूरा हुकूमती निज़ाम और उसके तमाम अज्जा और उसके इदारे एक पेज पे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में यही वो होगा जो अब तक हुआ है। आज तक ये मालूम नहीं हो सका, वो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो आए 10-15 दिन के बाद, महीने के बाद अपना मौक़िफ़ और तस्लीम तब्दील करता है। अमेरिका ने शायद उससे निकलने का भी फैसला कर लिया है या कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में एक कन्फ्यूजन है, कुछ मालूम नहीं है कि ये क्या बला आ गई है दुनिया में। तो इसकी हकीकत को तो मालूम करने के लिए वक्त का इंतज़ार करना है। लेकिन बहरहाल एक वबा है। जब वबा की बात आई, हमने कहा ये सियासी मसला है, सियासी इख्तलाफात होती जगह पर, लेकिन ये इंसानी मसला है, एक तिब्बी मसला है, उसको उसी तरीके से। लेकिन अब तिब्बी हवाले से भी कोई एक राय तो हो जिसके ऊपर कौन अमल कर सके।
कोरोना कैसे बीच में आ गया? अब जब पता चला कि पुराना ये बताइए, कराची जो इलेक्ट्रिक के जुल्म धारा कराची के अवाम पर पुराना माहदा, यहाँ इलेक्ट्रिक के लिए क्या आपकी पॉलिसी होगी? गैर एलानिया लोड शेडिंग है और बिलिंग है जिसकी 15,000 तक के 20,000 का बिल दे दिया जाता है, क्या नई कंपनियाँ इसका माहदा खत्म करें वफा? क्या कहेंगे इस बात? इलेक्ट्रिक हो या हमारे जो भी हो पूरा वाप एक ही हालत है। आप यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक से रो रहे हैं, हम वहाँ पर अपने इलाके में गर्मी के महीनों में वापस रो रहे हैं। लोड शेडिंग नहीं भी है और है भी, और अगर है भी तो वोल्टेज बहुत कम होता है। तो इस हवाले से कई मुश्किलात हैं। और जब आपकी बिजली नहीं है या वोल्टेज कम है तो आपका ट्यूबवेल नहीं चलता, सर आपको पीने के पानी का बहरान पैदा हो जाता है। इस लिहाज से हम जिहद यहाँ बेबरकतियाँ हैं और कोई समझ में नहीं आ रहा है, सर उलझते चले जा रहे हैं, हल होने की तरफ कोई भी बदला नहीं जा रहा। सुन ले, किसी और पार्टी से कोई सवाल है तो कर ले, वरना बहुत शुक्रिया जी। मदारस हमने खोलने का फैसला किया, इस तरह हुकूमत उन्होंने भी कहा है खोलेंगे, लेकिन एक बात है दीनी मदारस की छुट्टियों की वजह से शौबान, रमज़ान और शवाल हुआ करते, जबकि सरकारी स्कूलों की छुट्टियों के जो महीने हैं वो जून, जुलाई और अगस्त हुआ करते। लिहाजा अगर ये अगस्त तक जाते हैं तो अपने छुट्टी की दौरानिया है, तो अब तो हम तो वहाँ मार्च से शौबान से बच के बैठे हैं। शौबान हमारा गुजर गया, रमज़ान शरीफ हमारा गुजर गया, शौबान हमारा पूरा गुजर गया, जिसका निकाल जा रहा है। अब आप मुझे बताएं कि वो बच्चे जो हिफ्ज़ नाज़रा से वाबस्ता हैं, अगर वो एक हफ्ता भी मदरसे नहीं जाते तो जो पढ़ा हुआ वो भूल जाते। लिहाजा फ़िलहाल बच्चों के इदारे खोलने का फैसला किया गया है। और दूसरा ये कि वो जो इम्तिहान उनका बाकी था उसके लिए भी क्योंकि इसके तहत और बच्चा जिस ज़िले में है वही ज़िले में किसी मदरसे के अंदर इम्तिहान सेंटर बना कर इम्तिहान देने की उसको मौका दिया जा रहा है। बाकी मदारस जो हैं वो हम भी ईद-उल-अज़हा के बाद खोलने की बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी इदारे जो हैं वो ईद-उल-अज़हा के बाद खोलने की बात कर रहे हैं। कोई तसादुम की तरफ हम नहीं जाते। बहुत शुक्रिया जी।